جب عمار خان یاسر نے اس کے خلاف محاذ کھڑا کیا اور اس کو بے نقاب کیا اور خوب اس کی جب چھترول شروع ہوئی تو اب یہ کہتا ہے کہ جی میں نے معافی مانگتا ہوں اور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ قسمتی سے اسی چینل نے ویڈیو کو غلط انداز میں، ابھی اس میں چینل والوں نے کیا چیز غلط کی، آپ کے الفاظ آپ بول رہے ہیں، ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ میری بات کو غلط پیش کیا گیا، اب کہتا ہے کہ جو کچھ بھی کہا ہے جذبات میں کہا ہے۔ یار میں حیران ہوں، ایسے یوٹیوبروں کو لوگ سنتا ہے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں قرآن پاک کے اساتذہ اور اسلامی سکالر کا بے حد احترام کرتا ہوں، بالکل آپ کی ویڈیو سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو احترام کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پاکستان کا بڑا مشہور یوٹیوبر ہے، ظاہری صورت میں تو وہ مذہبی لگتا ہے لیکن وہ ایک لبرل شخص ہے۔ اس کی معافی نامہ آ گیا، اس نے توبہ کی، اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اس کے باوجود بھی میں اس کو ابھی تک لبرل سمجھتا ہوں، جو ہے حافظ احمد۔ اس نے مدرسوں اور علماء کرام کے بارے میں کچھ باتیں کی تھیں، وہ باتیں شاید اتنی وائرل نہیں ہوئی، لوگوں کی توجہ اس کے اوپر اتنی نہیں ہوئی، لیکن جب مالاکاٹ یونیورسٹی میں واقعہ پیش آیا کہ ایک اس کا پروفیسر ہے یا کون ہے جس کے پاس 4000 بچی کی فاش ویڈیو موجود تھی، تو ایک اور یوٹیوبر ہے عمار خان یاسر، اس نے اس چیز کو پک کیا اور اس کے اوپر یہ اعتراض لگایا کہ آپ علماء کرام کے اوپر تو بکواس کرتے ہیں لیکن جب یونیورسٹیوں میں یہ حرکت ہوتی ہے تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بچیوں کو یونیورسٹی نہیں بھیجنا چاہیے؟ کوئی اکڑ دکڑ علماء کرام کا واقعہ سامنے آ جائے تو آپ کہتے ہیں کہ بچوں کو علماء کرام کے پاس نہیں بھیجنا چاہیے۔ تو ناظرین، اس واقعے کو گھن کے حافظ احمد کی خوب چھترول ہوئی، اتنی زیادہ چھترول ہوئی کہ آخر وہ مجبور ہو گیا وضاحت دینے کے لیے، وضاحت بھی دی، معافی بھی مانگی، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اور عمار خان یاسر نے مطالبہ بھی کیا تھا ایک ویڈیو میں کہ جب تک وہ معافی نہیں مانگتا ہے یا وہ یونیورسٹی کے جو واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے ایک ویڈیو بنائے اور کہے کہ بچیوں کو یونیورسٹی نہیں بھیجنا چاہیے تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ بھلا آخر ناصر اس کی یعنی کہ وضاحت آ گئی، اس کی وضاحت رکھنے کے سے پہلے اس نے کیا کیا الفاظ کہے، کیا کیا اس کی جو اپنی غلطی تسلیم کی ہے تو کیا اس کی معافی نامہ ہے وہ عوام قبول کرے گی نہیں کرے گی، اس کے اندر بہت سارے سکم ہیں، بہت سارے اس نے ہیر پھیر کرنے کی کوشش کی، تو وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن ناظرین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے اس چینل کا وہ ویڈیو کلپ رکھتا ہوں جس کی وجہ سے حافظ احمد کو خوب برا بھلا کہا گیا اور کہنا بھی چاہیے۔ اس چینل کا وہ ویڈیو کلپ سنو، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ برداشت کیا جو ظلم میں نے دیکھے ہیں، میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے بچوں کو کبھی کسی قاری صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا، کبھی کسی بھی مولوی کے پاس نہ بھیجیں، چاہے وہ امام کعبہ ہی کیوں نہ ہو۔ آن لائن قرآن پڑھوائیں اپنے بچوں کو، زوم پہ قرآن پاک پڑھوائیں، لیکن فزیکلی کسی مولوی کے پاس اپنے بچے کو نہیں بھیجیں پلیز۔ کہ میں جب مدرسے پڑھتا تھا نا، میں نے حفظ کیا تو مار پڑتی تھی، ظاہر ہے وہاں پہ اتنی چھوٹیاں پڑی تھی کہ میں تقریباً 1.5-2 سال تک اس کروٹ پہ سو نہیں سکتا تھا۔ ناظرین، اس کے الفاظ آپ نے سنے ہیں کہ کسی بھی عالم دین کے پاس اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا چاہیے، چاہے وہ امام کعبہ بھی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اکڑ دکڑ یعنی کہ بہت کم آپ کو اچھے ملیں گے، آلموسٹ برے علماء کرام ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک مذہبی شخصیت، ایک عالم دین اپنے آپ کو کہلاتا ہے، اس کے والدین بھی، یہ پتہ ہے میرا پورا خاندان دین کے ساتھ ٹچ ہے۔ آگے جو اس نے وضاحت دی ہے یا جو معافی نامہ ہے اس کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ کیا یہ ایسے عالم دین ہوتے ہیں۔ اور اس نے کہا ہے کہ بھئی میری بات کو توڑ مروڑ کے، تو آپ نے سن لیا کہ کس طرح اس نے واضح الفاظ میں یعنی کہ کلیئر ہو کے اس نے یہ کہا ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک چھوٹا سا چینل ہے جس کے 17,000 سبسکرائبر ہیں، اور حافظ احمد کے اپنے کامیاب چینل ہیں جس میں 1 ملین 1.5 ملین یعنی کہ اس کے سبسکرائبر ہیں، اور یہ ایک 17,000 سبسکرائبر والے چینل کے اوپر بیٹھ کے معلوم نہیں اس نے کتنا پیسہ لیا۔ اور اگر آپ اس چینل میں جائیں گے تو سب سے زیادہ یعنی کہ اگر کوئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو وہ اسی کی وائرل ہوئی ہے، اور باقی جتنی بھی ویڈیو ہیں ان کے اوپر کم ویو ہیں، کسی کے اوپر 1000، کسی کے اوپر 1500، کسی کے اوپر 900، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی کیونکہ اس کا جو تھمبنیل تھا، جس مقصد کے لیے حافظ احمد کو بلایا گیا اور اس نے بخوبی یعنی کہ اپنا یعنی کہ کردار ادا کیا۔ میں ایک
क्योंकि थोड़ा बहुत मैं भी इससे रिलेटेड हूं, तो जो कहते हैं कि जो पॉडकास्ट वाले किसी मशहूर शख्सियत को बुलाते हैं तो उसको पैसे देते हैं, कुछ लोग फ्री में भी जाते हैं, कुछ पैसे भी देते हैं। तो जो लोग फ्री में जाते हैं तो वो तो किसी के पाबंद नहीं होते कि वो किसी सवाल का जवाब दें या ना दें, लेकिन जो पैसे लेके जाते हैं तो फिर वो पॉडकास्ट वाले के पाबंद होते हैं कि उसके सवालों का जवाब देना पड़ेगा, जिस तरह के भी वो सवाल करेंगे। तो यकीनन इसने जो खुल के जहर उगला इस्लाम के खिलाफ, उलमा कराम के खिलाफ, तो यकीनन यानी इसने उन्होंने अपना पैसा पूरा वसूल किया और उसके ऊपर जो थंबनेल लगाया कि मदरसे में मेरे साथ ज्यादती हुई, ठीक है ना, हाफिज अहमद की तस्वीर लगाई गई और एक आलमे दीन को एक शैतान बनाकर पेश किया गया, ठीक है ना। तो नाजरीन, जब ये उसका क्लिप वायरल हुआ तो एक अमार खान जासिर है जो अच्छी वीडियो बनाता है, एक मजहबी स्कॉलर है, तो उसने इस चीज को पिक किया। उसने पिक कब किया कि जब यानी कि मालाकंड यूनिवर्सिटी में वाकया हुआ तो अमार खान जासिर ने एक ट्वीट किया कि मालाकंड यूनिवर्सिटी में एक तालबा की शिकायत पर मुताला पाकिस्तान के प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया, तो मुलजिम से के कब्जे से बड़ी तादाद में अपनी ही तालबात की वीडियोज और तस्वीर बरामद हुई, जिसमें पाकिस्तान भर में यूट्यूबर हाफिज अहमद की तलाश जारी है, जो चंद दिन पहले कारी साहब की मार की वजह से कह रहे थे कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ने मत भेजें। उनसे गुजारिश है कि मुनाफिकाना रविश तर्क करें और हिम्मत करके अगली पॉडकास्ट में बच्चियों को यूनिवर्सिटी भेजने से मना करें, क्योंकि उनके अपने उस्ताद दरिंदों की तरह उन्हें नोचते हैं। चलें, शाबाश, जल्दी करें। तो ये बहुत ज्यादा यानी कि ट्वीट अमार खान यासिर का वायरल हुआ और जो भी इसकी अपनी हाफिज अहमद की वीडियोस के नीचे जितने भी कमेंट थे यही थे। तो वो मजबूर हो गया इसका जवाब देने के लिए, और बड़ी जबरदस्त बात यह है कि उसका जवाब आप सुनोगे आप हैरान हो जाओगे कि किस तरह का उसने जवाब दिया या माफीनामा उसने मांगा है। तो मैं वो पहले आपके साथ रखता हूं, फिर आगे जाके ना थोड़ी और इसके ऊपर बात करेंगे। नाजरीन, उसने अपने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट लगाई हाफिज अहमद ने। वो कहता है कि चंद दिन पहले मैंने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें मैंने अपने बचपन के कुछ तलख तजर्बात का जिक्र किया। बदकिस्मती से उसी चैनल ने वीडियो को गलत अंदाज में, अभी इसमें चैनल वालों ने क्या चीज गलत की, आपके अल्फाज आप बोल रहे हैं, बड़े फखर से बोल रहे हैं, और आप मैं हैरान हूं कि आप जहर उगल रहे थे उलमा अकराम के खिलाफ, और ये कहते हैं कि उन्होंने गलत उसमें पेश किया, गलत अंदाज में एडिट किया, एक गैर मुनासिब थंबनेल लगाया और चंद सेकंड के मखसूस क्लिप्स को नुमाया करके ऐसे तासर दिया जो मेरी मुकम्मल बात का दुरुस्त आकाश नहीं है। नाजरीन, इसकी मुकम्मल बात क्या है? जब इसने एक ही अल्फाज में कह दिया है कि अपने बच्चों को मदरसों में नहीं भेजना चाहिए, वहां दरिंदे बैठे हुए हैं, वहां जानवर बैठे हुए हैं, कोई भी आलमी दीन है, चाहे वो खाना काबा का इमाम ही क्यों नहीं है, किसी के पास नहीं भेजना चाहिए। इक्कुड़ दुक्कुड़ लाखों की तादाद में उलमा अकराम पाकिस्तान में मदरसे चल रहे हैं, तो उसमें इसके बकौल इक्कुड़ दुक्कुड़ यानी कि वो हैं, और ये कहता है कि जी गलत पेश किया गया, मेरा ये मकसद नहीं था, ठीक है ना, गलत अक्कासी की गई। मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि मैं कुरान पाक के असातिज़ा और इस्लामी स्कॉलर का बेहद एहतराम करता हूं। बिल्कुल आपकी वीडियो से मालूम होता है कि आप जो एहतराम कर रहे थे कि पूरे किसी के पास अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहिए कि वो दरिंदे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि मैं उनका एहतराम करता हूं। मैं हमेशा उनकी खिदमत को सराहता हूं, और मैं अच्छी खिदमत को सराह रहा है भाई, यही खिदमत है कि अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजना चाहिए। मैं सराहता हूं, हमेशा उनकी खिदमत को सराहता हूं, और मैं जानता हूं कि वो इंतहाई कम तनख्वाहों में दीन की खिदमत कर रहे हैं। मैं कई मौके पर उनकी तनख्वाह में इजाफे की जरूरत पर बात कर चुका हूं, और इसी इंटरव्यू में भी मैंने उनकी मेहनत और कुर्बानियों की तारीफ की थी, मगर बदकिस्मती से वो बातें नुमाया नहीं की गई। जो कुछ मैंने कहा वो जज्बात में कहा। अब एक तरफ तो ये कहता है कि मेरी बात को गलत पेश किया गया, अब कहता है कि जो कुछ भी कहा है जज्बात में कहा है। यार मैं हैरान हूं, ऐसे यूट्यूबरों को लोग सुनता है जिनका दीन अमान सिर्फ व्यूअरशिप होता है, डॉलर होते हैं, कि ऐसे पॉडकास्ट वाले जो हर आदमी को बुला के, चाहे वो फिल्मी अदाकार हैं, चाहे वो
टिक टाकर हैं, चाहे कोई भी हैं, उनको बुला के लोगों को सुनाना। तो मकसद क्या है कि मेरे डॉलर आने चाहिए, मेरे पॉडकास्ट में जो पैगाम जा रहा है उससे नस्ल तबाह हो रही है, उससे इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है, कुछ भी हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने दाढ़ी भी रखी हुई है, मैं आलमी दीन भी हूं, मैं एहतराम भी करता हूं, लेकिन मैं अपने चैनल से पैगाम पाकिस्तान को क्या दे रहा हूं, ठीक है ना। और वो करते हैं और ये कहते हैं कि मैं उनका एहतराम करता हूं, अजब करता हूं। मेरा पूरा खानदान, जो लोग नहीं जानते उन्हें बताता चलूं कि मेरे वालिद साहब मस्जिद के इमाम हैं और उन्होंने दरस निजामी किया है, की तालीम हासिल किया है। मेरा पूरा खानदान दीनदार है और मैं उलमा अकराम से बेहद मोहब्बत और अकीदत रखता हूं, इसलिए मैं अक्सर अपने पॉडकास्ट में उलमा अकराम को मदऊ करता हूं ताकि वो अपने इल्म और हिकमत से हमें मुस्तफीद कर सकें। मैंने इस चैनल से दरखास्त भी की है कि वो ये वीडियो डिलीट कर दे, मगर वो उसे हटाने पर राजी नहीं है, और चूंकि ये वीडियो मेरे अपने अकाउंट पर अपलोड नहीं हुई, इसलिए इसे हटाना मेरे इख्तियार में नहीं है। भाई वो कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? मैं इल्जाम लगा रहा हूं, मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं कि यकीनन आपने पैसे लिए होंगे। 17,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल के ऊपर इतना मशहूर वो कैसे जाता है, और वो भी चैनल कि जो एक लिबरल चैनल है, ठीक है ना, जिस चैनल के ऊपर हुमर का दारखुशी की जाती है उलमा कराम की, इस्लाम के खिलाफ, उसके ऊपर आप जाके बैठ रहे हैं, ठीक है। तो आप फ्री में जाके बैठ रहे हैं, ठीक है, फ्री में तो नहीं है। जब आपने पैसे लिए हैं तो फिर आप कैसे उनको कह सकते हैं कि भाई आप इसको डिलीट करें, ठीक है ना। मजीद वजाहत के लिए मैं कल इस हवाले से एक वीडियो भी बना रहा हूं ताकि हकायक दुरुस्त अंदाज में सबके सामने आ सकें। चलो वो वीडियो आती है वो देखते हैं, लेकिन ये कहता है कि मैं एक दीनदार शख्स हूं, मैं उलमा कराम की मोहब्बत करता हूं और मेरा पूरा खानदान है। बिल्कुल ज़हरी सूरत में हम नहीं कहते, ठीक है ना। मिर्जा कादियानी से बड़ा कोई आलमी दीन था, वो भी अपने आप को बड़ा आलमी दीन कहता था ना, ठीक है। और भी मैं अब दूसरे तरफ निकल जाऊंगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आपके जो फेसबुक के ऊपर कवर फोटो लगा हुआ है उससे भी मालूम होता है कि आप कितने दीनदार हैं। एक लिबरल शख्स आरिफ अलवी की तस्वीर, यानी कि आदमी उस शख्स के साथ तस्वीर बनाता है जिससे फख्र महसूस करता है कि यार मैंने इस शख्स के साथ तस्वीर बनाई हुई है, उसको कवर के ऊपर लगा दिया। जो आप अमेरिका के अंदर जाके यहूदियों से भीख मांग रहा है, उस शख्स की आपने कवर फोटो लगाया हुआ है और आप कहते हैं कि मैं बहुत दीनदार हूं। मैं बहुत कोशिश की, आज से 1.5 साल पहले इसी हाफिज अहमद के खिलाफ मैंने वीडियो बनाई थी। चूंकि मैं एक आम सा यूट्यूबर हूं, मेरे पास पूरा सिस्टम भी नहीं है। मैं कोशिश की थी कि इसके वो वीडियो मैं ढूंढूं, लेकिन वो मुझे वीडियो नहीं मिली। तो 1.5 साल पहले मैं इसके खिलाफ वीडियो बना चुका हूं कि ये सिर्फ जहरी सूरत में अपने आप को एक मजहबी शख्स साबित करके ये इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। बरकत नाजरीन, इसका जो मुआफीनामा है मेरी नजर में काबिल कबूल नहीं है। हाँ, जो लोग इसको यानी कि इसकी माफी को कबूल करते हैं वो करें, भाई ठीक है, माफ हुआ है। लेकिन इसने क्यों किया है कि अब इसकी जब छित्रोल शुरू हुई है, यानी कि 10-12 दिन हो गए इसने वीडियो अपलोड की, लेकिन इसने मुआफी नहीं मांगी, इसने मुतालबा नहीं किया, इसने कोई अपना ये नहीं किया कि मैंने भाई वो कल वीडियो बनाई थी तो उसको हो गया। लेकिन जब अमार खान यासिर ने इसके खिलाफ महाज खड़ा किया और इसको बेनकाब किया और खूब इसकी जब छित्रोल शुरू हुई, तो अब ये कहता है कि जी मैंने मुआफी मांगता हूं और मुझसे गलती हो गई है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि 2 किस्म की मुआफी होती है। 2 किस्म की गलती से आदमी को एक तो खुद एहसास हो जाता है कि यार मैंने गलती किया, चाहे एक आदमी भी निशानदेही करे। अगर मैंने एक गलत अल्फाज बोला है और वो आदमी मुझे बता दिया, यानी होशियार कर दिया कि मलिक साहब आपने जो अल्फाज के वो गलत के और मुझ तक वो पहुंच गए, मैंने वो अपने अल्फाज सुने तो मैंने मुआफी मांगी, तौबा की, तो फिर ये आदमी कह सकता है कि यार मैंने जज्बात में कह दे। एक आदमी ने भी की। लेकिन जब मुझे ये मालूम पड़े कि मैं कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट खोल भी नहीं सकता हूं, चाहे फेसबुक है, चाहे यूट्यूब है, चाहे टिकटॉक है, मेरे खिलाफ लोग महाज खड़ा करके बैठे हुए हैं, जब मेरा कोई रास्ता नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो फिर जाके आके मैं कहूंगा कि मुझसे गलती हुई है, मेरी बात को तोड़ मोड़ के पेश किया गया है। तो मैं नाज़रीन इस हिसाब से जो कुछ समझता है समझे, ये सिर्फ डर और सोशल मीडिया के ट्रोल की वजह से ये कह रहा है, नहीं तो इसके जो बोलने का अंदाज था या इसके बाकी जितने देख लें, ये सिर्फ इस्लाम बेच रहा है। और लिबरल लोग ऐसे लोगों को बुला के बखूबी जहरी सूरत में वो मुसलमान इस्लाम का टच होते हैं और उनसे ऐसी बातें उगलवाते हैं जो इसने अपनी वीडियो में उलमा अकराम के खिलाफ बकवास की है। बरकम देखते हैं नाजरीन क्या होता है। इसका जो आगे वीडियो आएगा उसका भी ऑपरेशन करेंगे कि वो किस तरह बयान करता है। परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक से सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।